that conversion part. Let's first do that conversion part and then let's go ahead with the next variety of the sum. Okay, so everybody please go on to page 38, sum number 3. Now those who have done, those who have not done, all of them are requested to keep your pens down, pay attention on the board how we are doing this conversion, and then one more similar type of a sum will give you in today's homework also, so that conversion part you do it every day. That's what I want. Okay, so if you are doing it every day then definitely एक दिन तो आ ही जाएगा, और वो दिन फिर पता नहीं 2021 का हो 22 का हो पता नहीं है. So let me copy the sum item. Then unit they have given, quantity of 2014 is Q0. Okay, then price of 2014 is P0 and 2015 prices are P1. Okay, so how was the conversion to be done? Item A, B, C, D, E. Now unit A is given in 1 quintal. Now raise your hand. 1 quintal was how much? Raise your hand. Very good. Raise your hand and then you answer. It's 100 kgs. Now 100 kg को हम convert कितने में करेंगे? 100 kg को हम convert कितने में करेंगे? Can I say 1 kg? So वहां पर quantity देखो, it's already in 50 kg. तो उसको change करने का जरूरत है? नहीं. And the price which is 1200, can I say it will be divided by 100? So it would be 12. And then 1700 is divided by 100, then it is 17. Now what was the important point I told you regarding the conversion part? What was the important point? कि ये जो प्राइस है वो 1 यूनिट के हिसाब से होने चाहिए और ये जो क्वांटिटी है वो इसके हिसाब से होनी चाहिए. That both thing we need to match up. Sure? Sure. Second वाला item B देखो, it is given in 20 kg. So again I would convert that into, I'll convert that into 1 kg. क्वांटिटी ऑलरेडी केजी में ही दिया है, कहना से वो दोनों मैच हो रहे हैं, तो उसे हमें बदलने की जरूरत नहीं है. बट द प्राइस 340 which is given, it is of 20 kg. तो अमाउंट कितनी आएगी? 17. Very good. And 380 is also, तो amount will come as 19. Then item C is given in 10 liter, will convert into, can I say quantity is already given in liters, so we don't change. But the price 30 rupees is given, it's for the 10 liter. 30 rupees is given is for the 10 liters, so it's 3. And 40 rupees is given is also for 10 liters, so the amount comes to 4. Then D, it is given in dozen. Can I say we'll convert that in 1? We'll convert that in 1. Then quantity, it is already given in piece, so nothing to convert in that. And amount 15 रुपया divide by 12 करना पड़ेगा. 1.25. And next क्या है? 24 divided by 12, that is 2. अने E अपने को दिया है 1 मीटर में, क्वांटिटी है 14 मीटर, and price it is already in 1 meter they have given for 12 and 16. So this is how we convert the table of third sum. आगे हमें ढूंढना क्या है? देखो, we have to find the cost of living index by total expenditure method. कोई बोलेगा नहीं, total expenditure method. कार्तिक के फॉर्मूला total expenditure method. Very good. P1 Q0
P0 Q0 into sigma P1 Q0 upon P0 Q0 into family budget sigma IW upon sigma W last pair P1 Q0 P0 Q0 into पाचशे and what about the Fisher under root IL into I sure तो यहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमें फाइंड करना है बाय विच मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड तो फॉर्मूला इज P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 into 100 so please multiply and give me the final answer come on expenditure method what was the answer you got what was the answer you got everybody got it go on to your formula page write the next formula go on to your formula page write the next formula the next formula is for real wage the next formula is of real wage it's a very easy formula likho real wage is monthly income या तो monthly wage upon cost of living index into 100 monthly income divide by cost of living index मंथली इनकम हो मंथली वेज हो चले देन द नेक्स्ट फॉर्मूला इज परचेजिंग पावर नेक्स्ट फॉर्मूला इज परचेजिंग पावर 1 अपॉन अगेन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स into 100 1 divided by cost of living index into 100 that's the formula for purchasing power then लिखेंगे rate of inflation बेटा तीनों फॉर्मूला पहले साथ में लिख लेते हैं then I'll explain you one by one what we are trying to say okay rate of inflation उसका फॉर्मूला लिखो होलसेल प्राइस of current year minus wholesale price of previous year upon wholesale price of previous year into 100 wholesale price of current year minus wholesale price of the previous year divide by wholesale price of previous year into 100 that's the formula for the rate of inflation that's the formula for the rate of now पहला formula क्या लिखा हमने real wage first formula what we wrote is real now real wage का मतलब क्या You might assume that you are earning 15,000, 20,000 per month. But when this income is matched with current year's index, what we do? Whenever is your monthly income is matched with what? Your current year's income or current year's index, तो उससे मुझे पता चलेगा कि actually real on hand मुझे कितना मिल रहा है. हमने ये बात ऐसी सीखी थी कि जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपनी इनकम भी क्या होनी चाहिए बढ़नी चाहिए तो ही अपना क्या मेंटेन होगा अगर इंडेक्स बढ़ता जाएगा बट माय इनकम रिमेन कांस्टेंट और माय इनकम डजंट ग्रो इन स्पेस विद दिस इंडेक्स तो मैं अपना परचेजिंग पावर अफेक्ट हो जाएगा
तो हम अपने वेज को क्या कर रहे हैं, इंडेक्स के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे मुझे मिलेगा क्या, रियल वेज। मतलब दिख रहा है कमा रहे हैं 15,000, बट इट वोंट बी 15,000, इट वुड बी मच लेसर देन दैट। देन परचेजिंग पावर हेल्प्स अस टू नो कि भाई हम कितना परचेज कर सक रहे हैं। एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज व्हाट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, at what rate the prices of the commodities or the prices are increasing. In general, rate of inflation indicates what, हर एक आइटम कौन सी रेट से बढ़ रहा है। Now ये rate of inflation अगर तुम देखोगे तो हर 2 या 3 महीने में पेपर में आता है कि भाई इंडिया का भी current rate of inflation is 6.6%. Now when it says 6.6%, it means કે ઓલમોસ્ટ બધી જ કમોડિટી કેટલા રેટ થી વધી રહી છે, 6.6%. So that is considered to be what, the rate of let's start the sum based on all these 3 methods. Let's start the sum. Please go on to page number 53. Page number 53, sum number 7. Page 53, sum number 7. Calculate the real wage of a worker class from the following data about their monthly wages. Find the purchasing power of the money in the year 2015. So हम यहाँ पर ईयर ले लेंगे, एवरेज मंथली इनकम, देन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. So 2010, 11, 12, 13, 14, 15. 15,000, 18,000, 19,000, 20, 22 and 25. 120, 180, 205, 220, 235 and then 260. यहाँ से सम में 2 चीजें ढूंढनी है अपने को. वी आर सपोज टू फाइंड 2 थिंग्स. फर्स्ट इज अ रियल वेज एंड देन वी हैव टू इवन फाइंड द परचेजिंग पावर. सो रियल वेज का फॉर्मूला जरा बताएंगे. रियल वेज मंथली इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100. सो 15,000 डिवाइड बाय 120 इनटू 100. 12500. अब देखो, can you get that what I'm trying to say? You are thinking कि you are earning how much? 15,000, but compared with the index 2010 का तुम्हारा इनकम को जब मैंने इंडेक्स के साथ कंपेयर किया तब देखो तुम्हारा रियल इनकम कितना निकला, 12,500. मतलब तुमको लग रहा है कमा कितने रहे हैं, 15,000, लेकिन योर एक्चुअल और द रियल इनकम इज ओनली 12,500. देन दिस इज 180 अपॉन 18,000 इनटू 100, 10,000. देन 2, एक मिनट, कुछ मिस्टेक करिए, ऊपर नीचे हो गया. 18,000 डिवाइड बाय 180 इनटू 100, दैट इज 10,000. 19,000 divided by 205. 9268.29. Then 20,000 divided by 220 into 100. 9090.91. 22,000 divided by 235 into 100. 93.70. Okay.
Then 25,000 divided by 260 into 100. 9615.38. 9615.38. So these are my real incomes, real wage with compared to the index. Okay. But okay. Any doubt with the formula? It's very simple. क्या है formula? Monthly income upon cost of living index into 100. Then please write the formula for purchasing power. Now tell me, for which year do I need to calculate the purchasing power? 2015. We have to calculate the purchasing power of the year 2015. So can I say my formula will be 1 upon cost of living index into 100? Into 100 है क्या? जरा चेक करो तो, मेरी गलती शायद ना हो. एक मिनट. I'm talking about the formula. I don't remember. Into 100 है? Yes. कि नहीं है? Yes. कहाँ देख रहे हो? अरे भाई, मैंने यही बोला, मैंने शायद गलत ना लिखवाया हो. तुम क्या दे कर रहे हो? हाँ देखो, इंटू 100 है, मैंने बोला था ना तुमको है. तो बेटा, व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द ईयर 2015? सो 1 डिवाइड बाय 260 इंटू 100. 0. यहां पर लिख दो 0.38 रुपीज. 0.38 rupees. Now the purchasing power is 0.38 paisa. But what do you mean by this logic, or what do you understand by the answer 0.38 पैसा? हमको ये 2015 का हमें कंपेयर कौन से ईयर के साथ करने का था? 2008. तो 2008 में जो 1 रुपी की वैल्यू थी, कितने की? क्या से 1 रुपी की वैल्यू घट के 0.38 हो गई. मतलब इन द ईयर 2008 वॉट एवर यू कुड बाय इन 1 रुपी, आज 1 रुपए की वैल्यू घट के कितनी हो गई है? 0.38 पैसा. मतलब तुम्हें देखो समझ में नहीं आ रहा है, शकल पर से लग रहा है. जरा इधर ध्यान, सिंपल लॉजिक से समझाता हूं. 2008 में कैसा होता था? 1 रुपये में तुमको 3 चॉकलेट मिलती थी. कितनी? 3 चॉकलेट मिलती थी. अब ये 2015 में क्या हो गया? 1 रुपए में 1 ही चॉकलेट मिल रही है. मतलब माई वैल्यू ऑफ रुपी हैज गॉन डाउन. जो 1 रुपए में पहले 3 आइटम मिलती थी, अब 1 रुपए में सिर्फ 1 ही आइटम मिल रहा है. मतलब रुपए की वैल्यू कम हो गई है. द वैल्यू ऑफ रुपी हैज गॉन. एंड कितना डाउन चला गया है? 38 पैसा हो गया है. जो 2008 में 1 की वैल्यू थी, अब कितनी हो गई है? 38 पैसा. ना वैल्यू डाउन होने का मतलब क्या? कि जो आइटम हमको पहले 1 रुपए में कितनी ज्यादा मिलती थी, अब वो कम मिल रही है. मतलब द वैल्यू हैज गॉन डाउन. दैट यू मीन बाय व्हाट? परचेजिंग पावर. दैट यू मीन बाय व्हाट? परचेजिंग पावर. श्योर? इसके जैसा एक और सम करने के लिए दूं तो हो पाएगा? पक्का? खुद से? आई एम प्राउड ऑफ यू. अभी बेटा आज मेन एक्सरसाइज ही करनी है अपने को. पेज 50 पर चले जाएंगे. 50 पर, पेज 50 पर चले जाएंगे. आई वॉन्ट यू टू डू सम नंबर 8. इन दैट you get me the real wage and purchasing power of 2013. Beta, you get me the purchasing power of 2013, okay? Real wage करके दो.
मैंने परचेजिंग पावर करके दो। बेटा पॉइंट पॉइंट में आंसर आ रहे हैं, घबराना मत, लिखते जाना, घबराना मत। सर घबरा कौन रहा है? जो कैलकुलेटर बता रहा है वही लिखेंगे, अपनी बुद्धि कहां चलानी है हमको। बेटा the purchasing the powers 0.63. Now purchasing power is 0.63. It means what? Whatever is the value of 1 rupee in some base year, now it has gone down to 0.63 paisa. It has gone down to 0.63 paisa. हाँ ये थे ना बेटा 0.63. हाँ सिमरन आंसर आ रहा है? हाँ जल्दी करो जल्दी करो। तरन आंसर 0.63। बाजू में देख, जादू का आंसर आया, जरा जल्दी देख। उसको आधी चीजें क्या मल्टीप्लाई करनी है, किसे क्या करने, वो थोड़ा बौखलाया हुआ रहता है जादू। इधर सारे पर्दे बंद है, इसको धूप नहीं मिल रही है उसको। कार्तिकेय आंसर? Now, go ahead with the ninth sum. Come on, ninth sum. What does it say? The ninth वाला sum क्या बोल रहा है जरा देखो। The wholesale price index for the year 2014 is and 2015 is 177.6 and 181.2. We have to find the rate of we have to find the rate of, raise your hand, formula आज ही लिखवाया, rate of inflation आज ही लिखवाया। भक्ति wholesale rate of current year minus wholesale rate of previous year divided by wholesale rate of previous year into 100. तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का होलसेल रेट क्या है? What is the wholesale price of previous year? 177.6 previous year. But what's the wholesale price of current year? Wholesale price of current year is 181.2. And better now you get me the answer for rate of inflation. At what rate the prices are increasing overalls. So wholesale price of current year minus wholesale price of previous year upon wholesale price of previous year into 100.
181.2 minus 177.6 upon 177.6 into 100. 2.03 percentage. Yeah, the rate of inflation will always be in terms of percentage. The rate of inflation will be always in terms of percentage. बेटा 3 things we learned today. 3 things. पहला formula, monthly wage upon CLI into, then purchasing power 1 upon CLI into, and then the rate of inflation. मतलब आ गया, इन शॉर्ट आ गया. अब से हम ये जो आगे के सम्स कर रहे हैं, दैट इज ऑल कनेक्टेड विद द प्रीवियस सम्स व्हाट वी हैड डन. तो उसका नेक्स्ट वाला सम कौन सा है, जरा चेक करो. नेक्स्ट वाला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10. मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट. सम इज वेरी इजी, बट इट हैज बीन आस्क्ड फॉर सो मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम्स. तो द सम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी. बट बिफोर वी डू दैट सम, अच्छा ऐसा याद कुछ करो ना, हम अर्लियर सम्स में वी यूज्ड टू राइट इंटरप्रिटेशन इन इंग्लिश. आफ्टर कंप्लीटिंग द सम वी हैव रिटन सम इंटरप्रिटेशन. एंड टू माय नॉलेज ऐसा 2 सम मुझे याद आ रहा है, 2 सम्स, कि जहां पर हमने ऐसा कुछ लिखा था, हमारा इंडेक्स का आंसर आ रहा था 307. अपना इंडेक्स का आंसर कितना आ रहा था? 30. लेकिन हमने उसमें इंटरप्रिटेशन कुछ किस तरह से लिखा था? क्या? As compared with the base year, the index has increased. Index has increased by 207. आधी जनता याद ही नहीं आ रहा है, जरा पेट टर्न करो, चेक करो वो कौन सा सम था, जरा चेक करो. सर એવું બધું કંઈ કર્યું તું, મને બોલો યાદ જ નથી. એટલે કમ્પ્યુટરના ચિપમાંથી પેલું બીજી મેમરી ઇરેઝ કરવી પડે પછી નવી સ્ટોર થાય. ऐसा है, ऐसा हमने कुछ नोट वोट लिखा था. अब उसमें शब्द क्या था? द वर्ड हैज, व्हाट वी हैड यूज्ड इज द वर्ड इंक्रीज्ड. फिर एक ऐसा सम था जिसमें आंसर कुछ आया था 128.53 या तो 54, और उसमें हमने ऐसा लिखा था कि द इंडेक्स हैज इंक्रीज्ड बाय 28.53%. आर यू गेटिंग इट? अब देखो मैंने वो सारे सम दिल से किए थे, इसलिए मुझे अभी भी याद है, और तुमने ओके आई गॉट इट. तुमने कहां से किए थे? सो 10th वाला सम जरा पढ़ो. उसमें ये इंटरप्रिटेशन वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, द वर्ड इंक्रीज. लेट्स रीड. द परसेंटेज इंक्रीज, अंडरलाइन द वर्ड इंक्रीज, in the price relative of 3 items are how much? 315, 328 and 390. What do you mean by this? The percentage increase in the price relative. The percentage increase in the price relative of 3 items. The percentage increase in the price relative of 3 items, that is A, B, C, A, B, C. Beta, after the class, please meet me and deposit your phone. Nothing other than this I want to talk now. Now, item given to us, index के बारे में कुछ बोल रहे हैं, and then they have given importance. Then they have given what? Importance. Now, what they are saying over there, that the price relative
हैज इंक्रीज्ड बाय 315, मतलब 315% से इंक्रीज हुआ है, 315% से। नाउ अगर ये 315% से क्या हुआ है, इंक्रीज, तो मेरा इंडेक्स क्या आएगा, मेरा इंडेक्स क्या आएगा, दैट इज द मेन पॉइंट, यू गॉट दैट, वेरी गुड। तो मेरा इंडेक्स विल बी 41, कैसे पता चला 415 आएगा, कहना से हमने अर्लियर क्या लिखा था, 360 था, लेकिन इंक्रीज बाय 207 लिखा था। अभी बेटा वो नोट दिखाने की पर्पस क्या थी तुमको यार, कि तुम समझो, वो लैंग्वेज को समझो। तो वहां पर भले लिखा था 207 से बड़ा है, लेकिन इंडेक्स कितना था, 307। तो यहां पर भी शब्द क्या दिया है, इंक्रीज, तो मेरा इंडेक्स क्या आएगा, 41। कैन आई से moral of the story, moral of the story, whenever the word is given increase, तो जो भी नंबर से इंक्रीज हो रहा हो उसमें 100 ऐड कर दो। ओ बेसुरे ने, अगर हमको वर्ड इंक्रीज ना दिया हो, खाली ऐसा लिखा हो इट इज 315%, अगर हम खाली ऐसा लिखे द प्राइस रिलेटिव इज 315, तो मेरा वो इंडेक्स 315 हो जाएगा। उसमें 100 जोड़ने के, 100 जोड़ने के, 100 जोड़ने का कब, जब वर्ड क्या दिया, अगर माई स्टेटमेंट इज लाइक दिस, द प्राइस रिलेटिव ऑफ एन आइटम इज 315, तो मेरा इंडेक्स सीधा 315 आ जाएगा। इंडेक्स कितना आ जाएगा, लेकिन अगर साला वर्ड कौन सा ठोड़ा है, तो हमें उसमें क्या करने का, 100 प्लस कर देने का। सो यहां पर मेरा इंडेक्स कितना आएगा, 100 प्लस 315 से इंक्रीज हो रहा है। सो मेरा यहां पर इंडेक्स विल बी 415। व्हाट से, सेकेंड वाला कितना है, 100 प्लस 328% बोले हैं, तो आंसर आएगा मेरा 428। पची 100 प्लस 390, इट्स 490। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द इंपॉर्टेंस। सर ये इंपॉर्टेंस बोले तो क्या, जो तुम मुझे नहीं देते हो, क्या है इंपॉर्टेंस बोले तो, यस, इंपॉर्टेंस आर नथिंग बट दे आर वेट्स। तो देखो कौन से रेशियो में वेट्स दिए हैं, 5:7:, तो माई वेट्स आर 5:7:8। ना अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फाइंड जनरल इंडेक्स, तो रेज योर हैंड, व्हाट फॉर्मूला विल आई अप्लाई, व्हाट फॉर्मूला विल आई अप्लाई, sigma IW upon sigma W. So simple. Let's start the sum. Come on, let's start the sum. जनरल इंडेक्स का फॉर्मूला है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। अच्छा, सम इंपॉर्टेंट क्यों था, किस शब्द की वजह से, इंक्रीज्ड, એટલે अपने को 315 नहीं 415 ठोकने का।
व्हाट्स माय फाइनल आंसर? 449.55। देखो सॉल्व करने से पहले आंसर पता है। 449.55। Four 449.55। Now let's go to sum number 11. Let's go to sum number 11. Now do you remember ऐसा हम कुछ ये find out करते थे based on the index in some earlier sum, if you remember, we had found out the monthly income. Again यार पेज टर्न करो यार, हट। हमने एक ऐसा सम देखा था जहां पर 15,000 अपनी इनकम थी एंड बेस्ड ऑन दैट फिर हमने करंट ईयर की इनकम फाइंड आउट करी थी जिसका आंसर 20,346 आता था। बेटा इवन अमाउंट आई रिमेंबर, यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, दैट्स सो पैथेटिक्स। कुछ लोग देखो मेरी खुशी के लिए पेज पलट रहे हैं, ऐसा पलट लिया अरे हाँ देख लिया सर, हमने देख लिया है। यस और नो? अरे यस और नो? जिनको मिला ठीक है, जिनको नहीं मिला अभी सम कर लो। पढ़ते हैं जरा, देखो अपनी बेस ईयर में मंथली इनकम कितनी है? बेस ईयर की मंथली इनकम बेटा tell me what's my monthly income of the base year? Which is my base year? 2000? Can I say that's my base year? That's my base year. Now in that base year, what is the monthly income they have given? The monthly income they have given is 20. Now which is my current year? 2016 is my current year. उसकी मंथली इनकम कितनी है? क्या से हमें वो एस्टिमेट करना है। अपनी करंट ईयर की मंथली इनकम कितनी है वो मुझे एस्टिमेट करना है। आगे जरा देखो तो कुछ और इंफॉर्मेशन दी है। इफ द कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर is 120 as compared to the base year. देखो इस गिवन कि करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है? 120. तो व्हाट वुड बी इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर? इंडेक्स ऑफ बेस ईयर कैसे पता चला? Can I say it is always assumed कि इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर is, now can you get this question mark? कैसे कैसे कैसे? Can I say 25,000 into 120 divide by 100? The answer is 30,000. बेटा सारे इजी वाले सम तुमसे हो नहीं रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब तुम वापस बेटा अपने आप को नल्ला साबित करोगे सम नंबर 12 में 100%। बेटा तुम अपने आप को वापस नल्ला साबित करोगे सम नंबर 12 में, कंफर्म है। क्योंकि जब मैं कहूंगा सम नंबर 12 11th के जैसा ही है और उसके बाद भी बोलने के बाद भी तुमसे ना हो पाए तो कहना से साबित हो जाए। 11 खत्म हो गया तो 12 शुरू कर देंगे। 11th अगर हो गया है तो 12th शुरू करेंगे।
But sum number 12. Did anybody start? Beta sum number 12. Did anybody start? मनवीर भाई नहीं. प्रथम, दोनों प्रथम लाइन में बैठे हैं. एक को बुलाऊंगा, दोनों देखेंगे. हर्षित, क्या है आंसर बेटा? 125. बहुत बढ़िया. How many of you getting 125? बेटा बांग्लादेश में ज्यादा हाथ ऊपर हो रहे हैं, इंडिया वाले सो रहे हैं. इधर ध्यान. बहुत इजी है, बहुत इजी है, जरा समझो. Which is my base year? Which is my base year? Can I say 2015 is my base year? Now 2015 जो base year है उसमें monthly income कितनी है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो लोग? 16,000. बहुत बढ़िया. 2016 अपना current year है. 2016 is our current year. तो उसमें मंथली इनकम कितनी है अपनी? 20,000. मुझे ढूंढने के लिए क्या बोला है तुमको वही पता नहीं चला. हमको करंट ईयर का क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा? इंडेक्स. अच्छा, बेस ईयर का इंडेक्स कितना होगा? कितना होगा? क्या अब ये तुम क्वेश्चन मार्क ढूंढ सकते हो? नहीं. Can I say cross the multiply? 20,000 into 100 divided by 16,000? 125. बेटा दोनों सम के डिफरेंस पता चले. Why I didn't rub this sum number 11? Because I wanted you to compare with the 12th. What is the difference in 11 and 12? Can I say in 11 index were given and we were supposed to find monthly income, and in sum number 12 monthly income were given and we were supposed to find. अब सोचो इतनी सिंपल बात तुमसे नहीं हो पाई. इट्स ओके. क्या बात है, कॉपी कर लो. नहीं हुआ तो क्या हुआ सर, नहीं हुआ और क्या. नाउ इज इट अंडरस्टूड? श्योर. सम नंबर 13 का आंसर टेक्स्ट बुक में ही लिख देंगे. टेक्स्ट बुक में ही. डोंट वेस्ट पेपर. 13th का आंसर टेक्स्ट बुक में ही लिख देंगे. मतलब अगर टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं आंसर, इसका मतलब क्या? इट विल बी अ वन लाइनर आंसर. वन लाइनर. कम ऑन, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? 180. हाउ मेनी ऑफ यू से 180? Anybody with some other answer? कृष्णा 180? 180 आएगा. हाँ तो मैं यही पूछ रहा हूं. चलो बेटा वोट ले लो, वोट ले लो. 100 180 कितने? 180. Anybody with some other answer? With some other answer? No sir, never, never. अच्छा 180 कैसे आया, कौन बताएगा? 180. Yes, Bhakti, how you got 180? 100 into 9 divided by 5. 100 into 9 divided by 5. 100 into 9 divided by 5. 180. आंख से अंधो, आंख से अंधो. वहां पर कोई एक वर्ड नहीं दिया है. आंख से अंधो. इंक्रीज.
सर मैंने वो देखा ही नहीं, बोलो सीधा 9/5 करके। मेरे को तो आंसर सबसे पहले देना था ना, इसीलिए तो गलत आंसर दिया हमने। वहां पर शब्द इंक्रीज है, तो अगर वर्ड इंक्रीज है तो वट एवर द आंसर यू आर गेटिंग उसमें 100, तो आंसर आएगा, आंसर आएगा। लिख लो कैसे आया। The price has increased by 9/5 सूझे 9/5 times. Now 9/5 times means 1.8 times, मतलब it is 180. Whatever is the times, that is 180. लेकिन शब्द है, शब्द है, so 180 plus 100 करके अपना आंसर आएगा। बेटा किस लेवल पर तुम सो रहे हो दिख रहा है मुझे। वर्ड इंक्रीज तुम स्किप कर रहे हो, कितना अच्छी तरह से छोड़ दिया, मजा आ गया। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। सेकेंड लास्ट सम 14th स्टार्ट करो। सेकेंड लास्ट सम इज 14th, स्टार्ट करेंगे। आज घेर जाओ वहां से। बेटा सम नंबर 14 is very easy. Sum number 14 is very easy. But anybody trying? Anybody trying? 14? Yes, Harsh? 2 to 2.5. सर हमसे ना हो पाएगा। बेटा it's 2 to 2. But I'm doing it just for you. IL कितना है जरा बताओ लास्ट पेयर। 2 to 1.5. फिशर कितना है 222. अपने को पासचे ढूंढना है, हाँ पासचे। सो बेटा फॉर्मूला क्या लगेगा, पासचे का फॉर्मूला क्या था। हाँ कौन है कौन है कौन है। पासचे का फॉर्मूला IL इंटू IP, कौन बोला रे। कौन था कौन था कौन था वो हीरो जरा कौन था, बहुत बड़े बेटा क्या कह रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो फिशर का फॉर्मूला हमने सीखा था ना, ऐसा पासचे का कोई फॉर्मूला ऐसा तो कोई नहीं था। तो इट इज IL इंटू IP. So 222 is equal to root of 2 to 1.5 into pasche. But how to remove this root? How to remove this root? Square both the sides. So 2 to 2 का square is 2 to 1.5 into IP. So 2 to 2 का square कितना है 284 is equal to 2 to 1.5 into IP. Therefore IP is 49284 divided by 2 to 1.5. 2 to 2.5. It's 2 to 2.5.
But this is how you need to do the working. But you couldn't do it. The last sum for today. The last sum for today, page number 51. Sum number 7. Page 51, sum number 7. बेटा वहां पर शब्द को जरा ध्यान से पकड़ना. हाँ, the price of the 3 items of the fuel item increased 50%, 90% and 110%, and the prices of other 2 items are decreased. So यहां पर पहले अपने आइटम लिखते हैं, then index, and their importance is nothing but क्या है? Importance is weights. So items are 5 item A, B, C, D, E. Now एक का increase है by 50%, it is increasing. So 100 plus 50% increase है, so उसका index 150 आएगा. 50% अगर बढ़ गया है तो 150. 100 plus 90 बढ़ गया है तो it is 190. 100 से 110% बढ़ गया है तो it's 210. Then it is decreased by 5%, that is 95, and decreased by 2%, that is 98. The importance and weights are 5, 4, 3, 2, 1. They are in the ratio 5, 4, 3, 2, 1. Now can I say IW करके you will get the final answer? IW करके can you get the final answer? I am waiting. Please finish it off. But is it done? Yes. Is it done? Yes. Please mark your homework properly. अब बेटा मैच देखते देखते थोड़ा करेंगे. Illustration 24. Now in that illustration we have 8 short sums. How many? 8. उसमें से खाली तुम्हें 6th वाला नहीं करना है, बाकी सारे illustration 24. Okay?